Assalamu alaikum, Sarah. How are you? I'm good. How are you? I'm fine as well. Thank you so much for sparing time for another session for students. Uh, do we have Danish with us? Or... Not yet. I'll drop him a message to All right. see. Yeah, just give me a second. Sure, sure. Meanwhile, we can have other participants joining us as well. So, so we are having 19 participants with us. Uh, so, Hello everyone. Those who have joined us for today's session. This session is about basically community service initiatives. Uh, this session will have sort of certain direct advantages like tangible and some certain non-tangible and tangible advantages as well. About tangible or sort of what we could say. So about the tangible advantages, if you have a good community profile, you have done exceptional community work in your undergrad or in your master's program and your academic in your academic journey, so that will definitely lift you up during your applications later on regarding various employment opportunities or scholarship opportunities for that matter. So that is really because in scholarships application as well, the funding or donor agency is really looking forward the aptitude of the person as an whole, that is it the person is a change maker or uh, uh, the person is change maker or is a social leader, or he has some sort of empathy, or he has some sort of uh, he cares for the society he's speaking about, and what are his goals, or he's sort of promising to work really hard for the society. But the what are the basically presidents, and has he led or been part of certain community service initiatives? And second, the most important, due to which I basically requested both the speakers that the community service is very close to my heart as well. And उसमें है ये basically कि आप अगर community service हम लोग कर रहे होते हैं, and both speakers inshallah will be highlighting this thing as well, कि आपकी energy जो use हो रही है, consume हो रही है, उसका community के ऊपर meaningful impact कितना आ रहा है. That could be superficial, that could be uh,
not that much impactful. That could be some shallow approach. So आप किस तरह से community service के अंदर एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट, किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म आप कैसे कर सकते हैं विद योर एनर्जी? और आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर के, और वी ऑल आर, एंड मिस सारा एंड मिस्टर दानिश विल एग्री एज वेल, बिकॉज दे आर रियली एक्टिव इन कम्युनिटी वर्क, कि जो आपको एनर्जी अल्लाह की तरफ से मिली है, सो यू नो ये इसके बदले आप से कल को पूछा जाएगा कि आपको ये एनर्जी मिली थी तो उन लोगों के लिए आपने क्या किया जिनको हमने ये एनर्जी नहीं थी, जिनके पास यार ये ब्लेसिंग्स नहीं थी. So with this sort of introductory note, I'll now request Miss Sara Anwar to take over and start the session. And please, Miss Sara, since we have some other new attendees as well, so kindly share your introduction, and this time with Fulbright, about Fulbright achievement as well, but mostly about your community services as well. Kind. Absolutely. Thank you, Naveed. Also, would just like to add that Danish se bhi meri baat hui hai. He's going to be joining us in 2 minutes. So while he does that, I'll just give my brief introduction. For those of you jinka ye first session hai with me, my name is Sara Anwar, and I graduated from LUMS back in 2018. I've been working in a software house ever since I graduated. And since this is a community service session, so I'm just going to share a quick list of organizations that I've worked with in the past. One of them is Seeds of Peace, which is an international organization जो कि conflict stricken areas में basically peace promote कर रही होती है. Second is the Lumen Social Responsibility Program. I worked for them with their summer internship जो कि वो हर साल run कर रहे होते हैं. I worked for Chai Chowk. This was a startup जो कि literary heritage Pakistan की revive करना इनका aim था. I've also worked with Social Innovation Lab, which promoted a lot of different, cultural initiatives in terms of heritage or जो पाकिस्तानी culture है different provinces का. So they used to fund organizations जो कि culture को support कर रही होती थी. I have ये सारे वो वाले initiatives हैं that I've worked with in 4 to 5 years ago. But very recently, I have volunteered with Beyond the Classroom Education for their Bulandi Fellowship Program. Or I have also been working with the Citizens Foundation as a Rahbar mentor, and I've also been helping them a little in terms of their content creation. जो BTC है, that's a educational non-profit organization. उसमें their aim is to basically conduct different I'd say activities, for lack of a better word, where they teach concepts जो कि हमें classrooms में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे the name basically suggests, BTC. And so they basically teach you very important life skills like critical thinking and empathy. And उन्होंने जो curriculum अपना design किया होता है, that's very different from जो एक routine school curriculum होता है. I'm sure a lot of you have heard about the Citizens Foundation. It's one of the largest education NGOs in Pakistan. They operate, hundreds of schools, or most of their schools are located in, sort of remote areas for underprivileged, societies. And उनकी जो Rabbar mentorship program होता है, उसमें भी they hire volunteers to come and spend 6 weekends with a group of 8 students, or unko bhi we are trying to impart education that they wouldn't really achieve in normal circumstances. And wo education zara hat ke hoti hai from their routine syllabus. So you basically teach them concepts like soch se leke takdeer tak ka safar, and humility, and community service in itself wo bhi a concept hai. So things like that. This was kind of an introduction of all the organizations that I worked with. And Naveed, if I can just move on and share the rest of the information that I've compiled, and then Danish can take over. Would that be okay? Yes, sure. Please go ahead. Okay. And we'll look forward to. I see that Danish has joined us already, Yes, so he's here. So
Anyways, चलें फिर, I'll continue and then I'll जी जी just give it. जी जी Okay, I perfect. took I took a bit long उसमें जो शुरू में इंट्रोडक्टरी नोट था उसमें मैं पार्टिसिपेंट्स को भी देख रहा था, सो सॉर्ट ऑफ डिस्टर्ब भी थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन आई थिंक यू कुड स्टार्ट एंड देन वी कुड रिक्वेस्ट दानिश देन. Okay, perfect. कोई मसला नहीं, absolutely. Anyways, so since I've already shared a list of organizations that I've worked with, the question that I'm basically gonna be answering next is, why did I start doing this in the first place? And if I'm very honest, जो initial मेरे Seeds of Peace वाले initiatives थे, they were something जो कि I found interesting and had fun with. So Seeds of Peace वैसे तो एक global मतलब international organization है, लेकिन वो local level पे काफी ज़्यादा programs करते थे. So they would have interfaith harmony camps जहाँ पे different faiths के लोग would come together and have dialogues. And similarly, they would have national integration camps. So usme different provinces ke people would come together and go through a similar exercise. And I had a lot of fun in that. So wo wale initiatives was more so for, based on my interest. But jab I joined LUMS and freshman year mein, I looked around and a lot of people were, volunteering for things, wo student societies mein the. And towards the end of freshman year, I realized कि मैंने freshman year में basically, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं किया. So that summer, I started looking at opportunities that I could, take. And in my sophomore year, मैंने बहुत सारी student societies भी join कर ली. I was part of the science society, the math society, Chai Chowk और social innovation lab भी तभी I was working with. And with that, I took up the Lumen social responsibility program वाली summer internship. And उस वक्त I think my niyat really was to just experiment के what makes me happy and different चीजें जो मैं कर रही हूँ, how do they help me in the short term and in the long run. And वो थोड़ा peer pressure भी शायद उस वक्त था because I saw a lot of people doing it. So I wouldn't say उस वक्त I had ये जो एक spiritual वो होती है, the enlightenment to do it with the need to give back to the society. But however, if I look back, so something that I enjoyed सबसे ज़्यादा during all of those initiatives, student societies, all of those experiences combined was my work with Hope Uplift Foundation, which is also like an organization that runs a chain of schools underprivileged areas mein. And this was in collaboration with Lumen Social Responsibility Program. और उसमें I really kind of liked how teaching kids and mentoring them, वो जो एक wholesome सी feeling उस वक्त आती थी when you teach them something and they actually gauge what you said, their faces would immediately light up. And I think that was the initial cue for me that education is one thing that is really close to my heart because of the happiness that it brings to me, both short term and long term. And a lot of people, when they ask कि क्या community service cause है जो कि सबसे important होना चाहिए, and it might differ for everybody, but for me it was always education. Reason being, I saw my parents being staunch supporters of it. और फिर secondly, जब मैं उसका impact देखती हूँ तो मुझे लगता है कि education usually helps us solve a lot of other problems. So it kind of translates into solutions of other bigger problems in the world. Like it can solve unemployment, hunger, poverty, world peace. All of those things are extensions of solutions that educated people can bring to this world. Anyways, so in my junior and senior year, I kind of went back to that phase where I didn't volunteer for a lot of things और मैंने बहुत ज़्यादा grades पे focus करना शुरू कर दिया था दोबारा से. And I think to date, this remains my biggest regret जो university time की होती है, because I feel that उस point I was super invested in grades, but had I taken on more initiatives like these, so they would have been way more helpful for me than a better GPA. And after I graduated,
I think हर किसी के life में after graduation they have this mini midlife crisis where they sit down and think, okay, is this the kind of life I want? Am I really happy? Do I have everything that I want? या जो जो चीजें मुझे चाहिए थी मुझे मिल तो गई हैं, and are they a result of peace for me? So I went through a similar activity, and I sat down and thought about it, and I was like, अच्छा grades तो अच्छे आ गए हैं, GPA भी अच्छा खासा है. I ended up with a distinction from LUMS, and alhamdulillah, I also had a job by the time I graduated. So उस point पे the two most things that undergrad would think are important, I had both of them, alhamdulillah. And I was still not, really happy in its true sense. And so when I was sitting and thinking about all of this, I thought, so what really brings me happiness? Yeah, what has done that for me in the past? It hasn't really been grades in the long term, because grades can make you happy. जब मतलब उसी वक्त आपको पता चले आपका A grade आया तो आपको बहुत खुशी होती है, but वो बड़ी short lived किस्म की खुशी होती है. 5-10 मिनट आपने अपने दोस्तों को बता दिया तो चलें 5-10 मिनट और लगा दें. But it doesn't really have एक spread out impact नहीं होता आपकी जिंदगी में. So when I was having that thought to myself, सबसे ज़्यादा जो चीज़ that came up in my mind was उन बच्चों की शक्लें जिनके साथ I worked with in the Hope Uplift वाला initiative. And whenever I think about that, even today, even though I think it's been like 6 years, तब भी it makes me as happy as it did while I was experiencing all of it. And so at that point in my time, this was 2018 September October, जब ये midlife crisis वाली episode चल रही थी. So I thought कि maybe this is something I should be doing side पे, like I need to volunteer for more initiatives like these. And I think around October end या November में BTC की बुलंदी fellowship की applications opened up. Fortunately for me, the timing was right. And so I volunteered, I filled out the application, I got in the program, and it's not an understatement to say that it was probably one of the best learning experiences for me. Because if I look at that, the kind of experience that it gave me, it wouldn't be wrong to say कि उस point पे हमें शायद लग रहा होता है कि हम दूसरों को सिखा रहे हैं, but in reality हम शायद खुद ज़्यादा सीख रहे होते हैं. And that's the most beautiful thing about volunteering for education, because it's kind of like being selflessly selfish, because you think you're being selfless by helping other people, but in reality वो initiatives आपको शायद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखा रहे होते हैं. And you get out of such initiatives as much as you give in, if not more. So satisfaction, peace और वो सारी चीज़ें शायद primary motives होते हैं और मिलती हैं, but for people who think कि learning is a factor for them to excel in life, which is completely fair on your part to assume. So even that's something that you get out of these initiatives. Anyways, फिर September 2019 में I had a second midlife crisis episode, and तब somebody reached out to me and said कि the Citizen Foundation जो है, they are running their Rabbar mentorship program, and I think you should volunteer. Again, I volunteered. I went through that 6-week long exercise, and pretty much like BTC, again it was very wholesome for me, the entire experience of going through that journey with a group of 8 people. And to date wo jo group of they were basically 8 girls, they still reach out and ask how I'm doing और सारा कुछ. तो वो काफ़ी exhilarating किस्म का experience होता है, और it's not like कि वो उस वक्त सिर्फ होता है जब आप experience कर रहे होते हो, but towards whenever you think about it, it brings you as much happiness and satisfaction as it did while you were experiencing it. This was basically a small recap of my journey with community service so far. But I'd just like to add that when Naveed kind of requested me to give this session, so I thought that what will I exactly share? Yeah, what do I talk about that makes it helpful or valuable for people who are attending it?
And मेरा जो first response था वो was to help you guys figure out कि if somebody wants to apply for such initiatives, so where do they look? Because I understand कि not everyone has, you know, that kind of access to information and programs. So what I did was I compiled a list of organizations who run similar programs. Uske liye I took a lot of help from friends and peers, posted in a few groups to get as many responses as I could. And I'm going to be sharing a link of that list in the chat section of this session, so everybody can have a look. It's a public link. You can share it with your friends. If there are organizations that you know about जो कि उस list में नहीं है, तो please feel free to request edit access to that document. You just let me know and I'll add that organization to the list. And make sure कि उसको आप अपने network में share करें, because I'm hoping that it'll be helpful for people. So this was my first response. Kacha, maybe I should compile a list of organizations that can help people. My second response was, how about I introduce you guys to someone who has made a larger impact, in my personal opinion, and their example might be more relatable, given that they've volunteered for these initiatives, and they've worked for these initiatives part-time, full-time, as an active employee, and they went on to make their own organizations from scratch to make this world a better place. And the first person that came to my mind was Danish. So I think just I immediately texted him, and he was nice enough to reply and say he'd be happy to do this. So I'm super grateful to him to kind of accept this and be here with us today. And I'm just gonna hand over to him. And Danish, I think you can take over now. Thank you, Sarah, for such a detailed insight on your journey and how it evolved, sort of. And I really like the two words, midlife crisis, because ये मेरे पे भी आया था और अभी भी आया हुआ है, और हर 2-3 साल बाद you observe or witness this midlife crisis, जहाँ पे आपको लगता है कि जो मेरी एनर्जी है क्या इसका इम्पैक्ट हो भी रहा है, या इट इज मीनिंगफुल टू सोसाइटी, so it is worth it. So thank you once again. Or I just wanted to share, Danish, आप take your time please, जितना आप, we have this meeting for like 15 minutes and then we have another meeting for 40 minutes after it, so please take your time as much as you want. Thank you. जरूर नवीन सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है तकरीबन 20-25 लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू टू सारा एंड नवीद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस जर्नी, जो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में एक संगे मील की हैसियत रखती है। और मैं अपनी ज़िंदगी में आज जो भी हूँ या कल को जो भी हूँगा, उसके अंदर इस जर्नी का मेरे ख्याल से बड़ा अहम किरदार है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट कर रहा था सारा के साथ। सारा मेरी नाम्स में भी सीनियर रह चुकी हैं, सीड्स ऑफ पीस का जिक्र किया था सारा ने, वहाँ पर भी मेरी सीनियर रह चुकी हैं। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। यकीनन इसके अंदर मुझे आज भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा था जो मैं कर सकता था, बहुत सारा ऐसा वक्त था जिसको मैं और बेहतर अंदाज से मुआशरे की खिदमत में, या कल चलें मुआशरे की नहीं तो अपने खुद की तलाश में कहीं पर सर्फ कर सकता था। लेकिन वो मेरे ख्याल से बहैसियत इंसान कहीं ना कहीं पर कमी कोताही ज़िंदगी का हिस्सा रहती है। बिफोर आई स्टार्ट रियली शेयरिंग कि मैंने काम कब से शुरू किया, वो सफ़र कैसे, उसका आगाज़ कैसे हुआ, मैं पहले बात ये करना चाहूँगा, कम्युनिटी सर्विस, ये जो हम आज जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रूरी क्यों है और वो क्यों होनी चाहिए, उसके हमारे यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात आपको मिलते हैं। जब हम 9th-10th क्लास के अंदर होते हैं ना, तो उस टाइम हमें बार बार, और ख़ास तौर पे ये क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड मैट्रिकुलेशन साइड से है, तो मैट्रिक साइड के ऊपर तो इसका बहुत ज़्यादा रुझान वैसे ही नहीं है। OA लेवल्स वाला जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है, जो बेहतर स्कूल्स हैं, वहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों को नो हाउ भी है, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, ऐसी बहुत सारी इनिशिएटिव्स उनको मिल भी जाते हैं। स्कूल्स के अंदर कई दफ़ा वो मैंडेटरी भी होता है उनके लिए कि वो इन इनिशिएटिव्स का हिस्सा बने। मगर जिस किस्म के स्कूल से मैं था, वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें आम नहीं थी।
और अगर कोई बच्चा इस किस्म की कोई चीज़ करने का सोच भी लेता था तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे यहाँ तो बस जी कोई डेक्लेमेशन करने चला जाता था, कोई तकरीर करने चला जाता था तो उसकी इतनी वाह-वाह होती थी। कोई मुझे याद है 2013 में मैं एक मुशायरे पे चला गया और उस मुशायरे को जीत भी गया, तो वो अगले 2 साल तक मेरे स्कूल ने उसका टंडोरा पीटा। हालांकि कोई ठीक है, एक अच्छी बात है, मुशायरा जीतना एजाज की बात थी मेरे लिए, आज भी है, मगर ये मेरे नज़दीक ऐसी चीजें नहीं होती कि आप इनको जिंदगी भर साथ लेकर चल सको। लेकिन कम्युनिटी सर्विस के अंदर छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे से मोमेंट्स होते हैं जिन्हें आप जिंदगी भर ना सिर्फ अपने साथ रखते हो बल्कि वो आपको जिंदगी भर ड्राइव करते हैं इन ऑर्डर टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इन ऑर्डर टू डू समथिंग मोर फॉर द कम्युनिटी। तो हमारे यहाँ 9th-10th और 1st-2nd ईयर के अंदर ना बार बार आपको बताया जा रहा होता है कि ये जरूर करो ताकि आपका ना किसी अच्छे इदारे में एडमिशन हो जाए। और मैंने OA लेवल्स के बच्चों में अनफॉर्चुनेटली यही ज्यादातर रुझान देखा है कि वो मोटिव ये होता है कि अंडर ग्रेड में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आईवी लीग में एडमिशन हो जाए, ताकि वहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमें एक फायदा मिल जाए, जो कि मैं नहीं कहता कि गलत है, मगर मेरे नजदीक कम्युनिटी सर्विस का जो एसेंस है ना वो इस चीज की वजह से शायद निकल जाता है कि आपका मकसद एक ऐसी चीज जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करनी चाहिए, जिसका मकसद ये होना चाहिए कि वो आपको अपने अंदर में इत्मीनान महसूस करा सके, आपने उसको भी एक ऐसी चीज पे डिपेंडेंट कर दिया है या एक ऐसी चीज को अपना मकसद बना लिया है जो दुनिया एक कह लें दुनियावी किस्म की है या मादी है, मटेरियलिस्टिक है। तो वहां पर आकर कम्युनिटी सर्विस का मुझे लगता है ज़ाती तौर पर मेरा तो दिल दुखता है कि इस किस्म का मोटिव होना नहीं चाहिए कम्युनिटी सर्विस को लेके। हाँ, ये उसका बाय प्रोडक्ट जरूर हो सकती है, और मैं टुवर्ड्स द एंड आई वुड टॉक अबाउट the things that I have gained from the community service की जर्नी, जो बड़ी मटीरियलिस्टिक है और दुनियावी हैं, और वो इस दुनिया के अंदर इस सोसाइटी के अंदर मुझे आगे बढ़ने में उन्होंने हेल्प आउट किया है, इवन व्हेन आई वाज नॉट रियली गोइंग इन दैट रेस, जहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मैं उस रेस में लगूं, चाहे वो नंबरों की है चाहे वो पैसों की है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी के अंदर मेरा मकसद उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मेरा मकसद ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें भी अल्लाह ने जो किस्मत में लिखी होती हैं वो आपको नवाजता है, क्योंकि वो आप इस दुनिया के अंदर रहते हो, इस सरमायादाराना निजाम में रहते हो, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स में कहीं ना कहीं पर जाकर वो मटेरियल रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ ये नजर आता है, दूसरा अंडर ग्रेड के लेवल के ऊपर जाकर क्योंकि आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना होता है, और कुछ लोग साथ ही साथ ना ये भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं। ये मेरे नजदीक शायद करियर परस्यू करने के हवाले से अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो वो शायद एक बेहतर अप्रोच है जो उन बच्चों के अंदर है जो 9th-10th के अंदर। लेकिन यहाँ पर आकर भी मुझे अक्सर यही नजर आ रहा होता है कि वो बस एक छोटे से वक्त के लिए वक्त निकाल कर उसके लिए चला जाया जाता है। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं जो बस जी साल के अंदर एक हफ्ता निकालते हैं, लेकिन वो उसका मकसद भी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों ने कम्युनिटी सर्विस को उस तरह से उसका लिबादा ओढ़ कर उसको महसूस नहीं किया होता कि आपके अंदर में कितना एक वो उर्दू का लफ्ज है भोंचाल या मचा सकती है कि आप सोचने लग जाएं कि अच्छा जिंदगी का एक मकसद इस तरफ भी एक रास्ता भी है जिसके अंदर हमारा मकसद इस दुनिया की तरह मटीरियलिस्टिक नहीं है बल्कि उससे बढ़कर कुछ है। और मुझे लगता है कि वो कम्युनिटी सर्विस का मकसद इस बढ़कर ही होता है। और जब मैं खिदमत खल की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल याद आती है, और उस पर भी हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि अब्दुल सत्तार ईदी का जिक्र करने वाले, उनकी तारीफ करने वाले, उनकी बड़ाई में, उनकी शान में लिखने वाले बहुत सारे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी के अंदर जो बहुत बड़ा मकसद था हम उसका 1% जिंदगी में लेकर आने का सोचे भी ना, तो हमारे अंदर से भी एक आवाज आती है कि यार मतलब क्या ये वाकई वो है जो हम सारी जिंदगी करना चाहते हैं, क्या हम इससे सारी जिंदगी खुश रह सकेंगे। और उसके बाद मैंने तो अपने घर में भी यही माहौल देखा है कि अगर मैंने कभी अपने माँ बाप के सामने ये बात कर दी है
जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो आप लोगों ने मुझे दिया है ना, ये मैं इस पे शुक्र करूंगा और इसी मर्तबे पे स्टेटस को के अंदर मैं यहाँ मुआशरती जो हैसियत मेरी है, मैं इसके अंदर ही रहना चाहूंगा, इससे एक कदम भी आगे नहीं जाना चाहता। और जहां जहां पर मौके नजर आएंगे एक कदम आगे जाने पे, उनका मैं फायदा उठाते हुए मुआशरे के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। इस सोच को अनफॉर्चुनेटली टीवी पर देखकर तो मेरे माँ बाप और मैं अपने माँ बाप की बार बार बात कर रहा हूँ, उसकी वजह आपको मैं जब अपनी कहानी सुनाऊंगा उसमें भी नजर आई कि आज वो मेरा हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज से 3 से 4 साल पहले तक जब मेरा ये अभी आगाज था इस सफर का, तो मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ से कह लें, वो हर तरह से मुझे बताते थे कि तुम्हारा तुम अपना करियर तबाह कर रहे हो बेटा, जिंदगी इन कामों में नहीं गुजारी जा सकती, जिंदगी में इससे बढ़कर सोचना पड़ता है, CSS करना चाहिए या फलानी चीज करनी चाहिए, या जी गवर्नमेंट की नौकरी ही, गवर्नमेंट की जॉब ही करनी चाहिए। तो इस तरह की सारी सोच मुझे सुनने को मिलती थी। और मुझे लगता है कि मुआशरे के अंदर इस किस्म की चीजों की एक्सेप्टेंस उतनी मौजूद नहीं है। हाँ, अगर आप कोई बिल्कुल छोटे से अरसे के लिए काम करके सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ, क्योंकि सर्टिफिकेट भी अनफॉर्चुनेटली एक जी वो तमगा है अपनी कम्युनिटी सर्विस का, तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी सर्विस एट द एंड ऑफ द डे इज बिगर देन जस्ट अ सर्टिफिकेट। मोटिव ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें नजर आता है। हाँ, जब हमने आगे किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना हो तो पिछली ऑर्गेनाइजेशन का कोई रेफरेंस आपको अगर चाहिए हो तो वो आप जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस किस्म की मिसालें देखी हैं कि जी जिस दिन आखिरी दिन है उस दिन बस जी हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया। मुझे वो चीजें जाती तौर पर पिंच करती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं उसके अंदर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि ये काइंडली अगर आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं तो फिर ना आइए। आपको मैं ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस का बता सकता हूँ जहाँ पर आपको जाएंगे, आपको अच्छे सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, अच्छे लोगों के दस्तखत के साथ मिलेंगे। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको अपने दस्तखत करके एक सर्टिफिकेट पकड़ा दूँ। तो उसके बावजूद भी मुझे यही नजर आता था कि टुवर्ड्स द एंड लोगों की एक एक्सपेक्टेशन बन जाती थी कि अच्छा यार, ये एट द एंड ऑफ द डे है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही, ये भी हमें कुछ ना कुछ तो देंगे। और वो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता था, या सर्टिफिकेट होता था या रिकमेंडेशन लेटर होता था। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी सर्विस की जो जर्नी है वो दरअसल ना, जैसे सारा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि वो आप सेल्फलेसली सेल्फिश होकर अगर कम्युनिटी सर्विस को देखो तो ये आपके अंदर की दुनिया की खोज लगाने का एक सबसे खूबसूरत तरीन जरिया है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा इस काम की तरफ वक्त लगाते हुए देखा है ना, मैंने यही पाया है कि वो जो ये दुनियावी साइड पर आप अपने करियर्स का हम सोचते हैं ना, उस हवाले से भी मुझे वो कहीं ना कहीं जाकर उनकी जर्नी मुझे ज्यादा स्मूथ नजर आई है। हाँ, उनकी कम्युनिटी सर्विस के हवाले से लेकर जर्नी काफी मुश्किल जरूर हो जाती है, क्योंकि आपने दो चीजों को साइमल्टेनियसली साथ लेकर चलना होता है, जिंदगी भी है, घर बार भी है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस जर्नी की वजह से आप अपने अंदर की दुनिया के की खोज लगा सकते हैं और आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप सोचना शुरू करते हैं वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको दरअसल कंटेंट फील कराती हैं। और मेरे नजदीक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिंदगी का एक आप कह लीजिए तराजू है। अगर आपने और मैं उस तराजू को अपने साथ रखता हूँ कि मैं अगर मुझे ये देखना है, ये सोचना है कि मैं जिंदगी में खुद को कितना कामयाब महसूस करता हूँ, तो उसका तराजू सेल्फ सेटिस्फेक्शन का होना चाहिए। और वो ड्राइव हमेशा मेरी कम्युनिटी सर्विस से ही होती है। और कम्युनिटी सर्विस हमारे यहाँ जिस तरह से राइज है, मैं उसको किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि ये जी नहीं होनी चाहिए या ये गलत है, मगर मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं पर जाकर आज मुआशरे के अंदर वो दिखावे में लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे किसी इनिशिएटिव का हिस्सा भी बन जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपकी नीयत को जानता है और यकीनन अल्लाह उनकी नीयतों को भी जानता है। मैं सिर्फ अपना नजरिया बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कि मुझे लगता है कि वो बस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रांट्स के लिए और बाहर से बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं। मतलब आप सोचिए कि बहुत आपने 1200 बच्चों के साथ काम करना है ना, बल्कि 1200 तो ज्यादा है, 500 बच्चों के साथ आपने काम करना है और आपके कुछ 20-30 वॉलंटियर्स हैं। तो इस काम के लिए ना आपको मतलब बहुत आसानी से अगर आपका असर रसूख है और आपको पता है कि ग्रांट की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, तो आपको आराम से ना कोई 2-3 मिलियन की ग्रांट तो ऐसे आपके पास दौड़ी आएगी।
और वो चीज़ मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा खाती है कि आज कम्युनिटी सर्विस का मोटिव भी वही बन चुका है कि जी पैसा आएगा और फिर हम उसके बदले मुआशरे के अंदर कुछ करने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर भी एक और बड़ा मसला ये आ जाता है कि फिर जब वो लोगों के पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, पैसे आते हैं, तो वो फिर उसका इस्तेमाल ये नहीं होता कि वो सारा का सारा मुआशरे पे लग जाता है। उसका इस्तेमाल ये होता है कि उसका 5% 10% उस इनिशिएटिव पे लग जाता है, बाकी जो 90% होता है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने सेविंग्स में डाल लेती है ताकि वो कल को कोई और काम कर सके, जिसमें मेरा दिल दुखता है। और ये चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी इनिशिएटिव का हिस्सा बने, उसमें आप ज़ाहिर बात है बाहर से बैठकर इन चीज़ों को नहीं देख सकते, मगर जब आप अंदर जाते हैं या खुद कभी किसी इनिशिएटिव के मालिक बनते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल करना, अगर आप उस एसेंस को महसूस करना चाहते हैं कम्युनिटी सर्विस को, तो मेरे ख्याल से उससे आगाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खिदमत खल्क की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर हम ज़ाहिर बात है ईदी साहब और ऐसी कई मिसालों को अपने जहन में रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त इसी बात पे ले लिया है कि कम्युनिटी सर्विस मेरे लिए क्या है और मुआशरे ने उसको आज क्या रंग दे दिया हुआ है। तो अब मुझे पता है कि 2.5 मिनट रहते हैं, तो उसके जहाँ पर भी कट होगी फिर विल रिज्यूम उधर से ही अगले वाले लिंक के थ्रू। तो मेरी जर्नी भी सीड्स ऑफ पीस से ही स्टार्ट हुई थी, और वो स्टार्ट हुई थी 2013 के अंदर। 2013 में मैं 9th ग्रेड के अंदर था, और वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी मॉक पार्लियामेंट की। मैं मॉक पार्लियामेंट के ऊपर गया। मैंने ज़िंदगी में ना कभी डिबेट्स की हैं और ना कभी उनका हिस्सा बना हूँ, ना पार्लिमानी डिबेट्स, ना कोई और। मुझे तो माजरत के साथ, मगर मुझे नाम भी नहीं आते वो, और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिस पे कम से कम मैं ज़ाती तौर पर तो खुशी हूँ। लेकिन वो एक वक्त था जब मैंने देखा कि अच्छा, ये कुछ लोग हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि अच्छा, ये लोग अमेरिका से होकर आए हुए हैं, और ये तो बड़ी कोई महान शख्सियात होंगी। तो वो एक अट्रैक्शन थी कि अच्छा, अमेरिका ये लोग गए हुए हैं। और उसके बाद मैंने जब काम मुआशरे के अंदर कुछ करने का आगाज किया, तो वो मेरा कुछ भी सीड्स ऑफ पीस से ही उसका आगाज हुआ था। 2014 में सीड्स ऑफ पीस की एसोसिएट मेंबरशिप की एप्लीकेशंस खुली, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और मैं वहाँ पर सबसे छोटा होता था, और मैं सीट भी नहीं था, यानी मैं अमेरिका भी नहीं गया हुआ था, लेकिन मैं उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर एज अ वॉलंटियर उनको ऑर्गेनाइज कर रहा था। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। और मेरे लिए वो एक बहुत अलग दुनिया थी। उसकी वजह ये थी कि मैं तो एक ऐसे डब्बे के अंदर बंद था जहाँ पर मुझे ये पता था कि मैट्रिकुलेशन ही एक वाहिद सिस्टम है, ग्रेड से बाहर, ग्रेड के अलावा जिंदगी में कुछ होता नहीं है। और जी डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ आर्मी ऑफिसर बनने के अलावा दुनिया के अंदर कोई तीसरी, अगर कोई चौथी ऑप्शन आप सोचते हैं, तो वो फिर कमतर ही होती है। इनसे बेहतर और कुछ होता नहीं। क्योंकि मैं उस डब्बे में बंद था। जब मैंने उस डब्बे से बाहर देखना शुरू किया सीड्स ऑफ पीस के वसीले से, तो वो एक मेरे ख्याल से एक जर्नी का आगाज था, जहाँ पर ना सिर्फ वो सफर शुरू हुआ जिसने मुझे उस डब्बे से बाहर देखना सिखाया, बल्कि वो सफर शुरू हुआ जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैंने अब इस डब्बे से बाहर भी निकलना है। तो सीड्स ऑफ पीस के अंदर 2014 में मैं वॉलंटियर करता रहा, और 2015 में फॉर्चुनेटली मैंने उनके जो इंटरनेशनल कैंप है अमेरिका वाला, उसमें अप्लाई किया, एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट सिलेक्टेड। और मैं 2015 में जब मैंने 10th ग्रेड अभी पास किया था, तब मैं अमेरिका गया सीड्स ऑफ पीस के साथ। तकरीबन 24 से 25 दिन थे, और वो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी का एक ऐसा पीरियड था 3 हफ्तों का, जहाँ पर मैंने लोगों